سالار ڈیجیٹل اردو سروس پر بنگلورو سے تمام کا خیر مقدم ہے۔ اس ہفتے کی اہم خبروں میں سب سے پہلے کرناٹک کے وزیر صحت ڈاکٹر سدھاکر نے کہا کہ کسی ایک برادری یا طبقے کی تائید سے نہیں بلکہ عوام کی قیادت پر یقین رکھنے والا ہی وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے۔ وزارت کا تجربہ رکھنے والے ضمیر احمد خان سے ایسے الفاظ کی توقع نہیں تھی جس سے وکلیگا طبقے کو تکلیف پہنچے۔ سیاستدانوں کو بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ اس بیان سے نہ صرف ان کو بلکہ پارٹی کو بھی نقصان ہوگا۔ کانگریس کی صدر سونیا گاندھی کی ای ڈی پوچھ گچھ پر تبصرہ کرتے ہوئے سدھاکر نے کہا کہ نریندر مودی جب گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے اس وقت انہوں نے گجرات فسادات معاملے میں 8 سے 10 گھنٹوں تک تفتیشی کارروائی کا سامنا کیا تھا۔ ملک کے وزیر داخلہ امت شاہ کو تڑی پار کیا گیا تھا، تو پھر اس کارروائی میں تعاون کرنے میں کانگریس کو کیا پریشانی ہے؟ ملک بھر میں ہو رہے کانگریس کے احتجاج پر برہمی ظاہر کرتے ہوئے مسٹر سدھاکر نے کہا کہ جن کو جمہوریت پر یقین ہوتا ہے وہی لوگ تفتیشی ایجنسیوں کی جانچ کا سامنا کرنے تیار رہتے ہیں، پھر بھی اگر انصاف نہ ملنے کا خدشہ ہو تو کورٹ کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ ملازمتوں میں تخفیف کو لے کر اپوزیشن کے الزامات کے درمیان حکومت نے پارلیمنٹ میں یہ جانکاری دی کہ 2014 کے بعد سے اب تک 7,22,311 عہدوں پر مرکزی حکومت میں ملازمتیں دی گئی ہیں۔ وزارت برائے پرسونل میں ریاستی وزیر جتیندر سنگھ نے تحریری جواب میں یہ بھی بتایا کہ ملازمتوں کے لیے 22 کروڑ سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئی تھیں۔ واضح رہے کہ اپوزیشن لگاتار بے روزگاری اور مہنگائی کو لے کر حکومت پر سوال اٹھا رہا ہے۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ بی جے پی ہر سال 2 کروڑ لوگوں کو روزگار دینے کے وعدے پر اقتدار میں آئی لیکن وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کر رہی ہے۔ راہل گاندھی نے بے روزگاری کے تعلق سے پھر ٹویٹ کیا کہ مہنگائی اور بے روزگاری پر سوال پوچھنے کے جرم میں راجا نے 57 اراکین پارلیمنٹ کو گرفتار اور 23 اراکین پارلیمنٹ کو معطل کیا۔ راجا کو جمہوریت کے مندر میں سوال سے ڈر لگتا ہے لیکن تاناشاہوں سے لڑنا ہمیں بخوبی آتا ہے۔ بریلی میں کل ہند اتحاد ملت کونسل کے قومی صدر مولانا توقیر رضا خان نے کہا کہ مرکزی حکومت نے قومی پرچم کو کاروبار بنا لیا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم سے سوال کیا کہ کیا وہ RSS کے ہیڈ کوارٹر پر بھی ترنگا یا جھنڈا لہرانے کی بات کریں گے؟ ترنگا جھنڈا ہمارے ملک کا قومی پرچم ہے، ہمارے ملک کا فخر ہے۔ اسے گھر گھر ترنگا مہم کے ذریعے لوگوں سے اپنے گھروں، دکانوں اور اداروں پر لگانے کی اپیل کرنا درست نہیں ہے۔ مولانا توقیر رضا خان نے مزید کہا کہ ہمارا ملک وشو گرو بن سکتا ہے لیکن ہندو مسلمان کے جھگڑوں میں الجھا کر کبھی نہیں۔ وشو گرو بنانا ہے تو پہلے اپنے پڑوسیوں سے رشتے بہتر کرنے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ چین کبھی بھارت کے قبضے میں نہیں آئے گا، لہٰذا یہ لازم ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کو پہلے نیپال سے رشتے بہتر کرنے کی ضرورت ہے، بھوٹان سے رشتے درست کرنے ہوں گے، سری لنکا کو اپنے ساتھ لانا ہوگا، پاکستان سے بھی ہمیں اپنے رشتے بہت بہتر اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہم امریکہ سے بھی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کی حالت میں ہوں گے۔ ڈالر کے مقابلے میں روپیہ گرتا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈالر کے مقابلے میں روپیہ پیٹرول اور ڈیزل کی طرح 100 روپے کی قیمت تک پہنچ جائے۔ مرکزی وزیر نتن گڈکری نے ملک کی صورتحال پر تازہ ترین بیان دیا ہے کہ موجودہ سیاسی صورتحال سے وہ تنگ ہیں اور سماجی خدمات انجام دینے کے لیے سیاست چھوڑنے کی بات کی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی بی جے پی میں رہنے کے باوجود نتن گڈکری کا ضمیر مردہ نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ابھی وقت ہے کہ وزیر اعظم ملک کی صورتحال کو بہتر کر سکتے ہیں لیکن انہیں اپنے 2 دوستوں کی ناراضگی برداشت کرنی ہوگی، ملک کے تمام باشندوں کا بھلا ہو جائے گا۔ ترنمول کانگریس کے سربراہ اور مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا کہ برطانوی دور حکومت میں بھی اتنے ظلم و ستم نہیں ہوتے تھے جتنا آج بی جے پی کر رہی ہے۔ بی جے پی حکومت سرکاری جانچ ایجنسیوں کا غلط استعمال کر کے اپوزیشن جماعتوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اپنے مقصد اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ مہاراشٹر کی منتخب حکومت کا خاتمہ اس کی ایک مثال ہے۔
मंकी पॉक्स का कहर धीरे धीरे एक मुल्क से दूसरे मुल्क में फैलता हुआ नजर आ रहा है। अब तक तकरीबन 75 ममालिक में 16,000 से ज़ायद इन्फेक्शन के मामले सामने आ चुके हैं और 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मंकी पॉक्स को बैनुल अक़वामी अवामी तिब्बी इमरजेंसी करार दिया जा चुका है। मंकी पॉक्स पर टेक्निकल लीड डॉक्टर रोसमंड लीविस ने ट्विटर पर एक वीडियो में कहा कि इस अलर्ट की वजह यह है कि हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द इस कहर को रोक सकें। मौजूदा वक्त में मंकी पॉक्स वायरस नौउम्र अफराद और औसत उम्र तकरीबन 37 साल वाले उन मर्दों में फैलता दिखाई दे रहा है जो दूसरे मर्दों के साथ जिनसी ताल्लुकात बना रहे हैं, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। इसके अलावा ये ज़्यादा कमज़ोर तबक़ात या इंतहाई हसास लोगों में भी फैल सकता है, खुसूसन बच्चों, हामिला ख़वातीन और कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़ात वाले लोग भी इसकी ज़द में आ सकते हैं। WHO ने एक्सपोज़र के बाद टीकाकारी की सिफारिश की थी। सुपरस्टार रजनीकांत ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज बताते हुए अपने फैंस से कहा कि पैसे से हर चीज़ हासिल नहीं की जा सकती। सैकड़ों करोड़ की आमदनी और सबसे ज़्यादा फैंस, आइश व इशरत, माल और दौलत रखने वाले रजनीकांत का कहना है कि सब कुछ होने के बावजूद मेरी ज़िंदगी में 10% भी दिली सुकून और इत्मीनान नहीं है। लोग कहते हैं कि मैं सबसे बेहतरीन अदाकार हूँ। ये हकीकत है या अफसाना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। रजनीकांत के इस बयान से उनके चाहने वालों में मायूसी की लहर दौड़ गई है। लोगों का कहना है कि इतने बड़े अदाकार की ज़िंदगी में सुकून व इत्मीनान का ना होना बाइसे तशवीश है। लोगों का यह भी कहना है कि अपनी दोनों तलाकशुदा बेटियों की वजह से वह अफसरदा और गमगीन रहते हैं। असातिज़ा भर्ती बदउनवानी की तहक़ीक़ात में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ओहदेदारों ने 4 शुबे को कोलकाता और मुज़ाफ़ात के 3 मकामात पर छापामारी की। अर्पिता मुखर्जी के बेलघरिया में वाक़ एक और फ्लैट से ओहदेदारों ने तकरीबन 29 करोड़ नकद 5 किलो सोना बरामद किया है। ईडी टीम को यह रकम गिनने में तकरीबन 10 घंटों का वक्त लगा। बताया जाता है कि अर्पिता ने यह पैसा फ्लैट के तहरत खाने में छुपा कर रखा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने असातिज़ा तकर्री बदउनवानी मामले से मुताल्लिक हाल ही में रियासत मगरबी बंगाल के वजीर पार्थिव चटर्जी को गिरफ्तार किया था। अर्पिता मुखर्जी चटर्जी के करीबी हैं। 5 दिन कबल ही ईडी को अर्पिता के फ्लैट से 21 करोड़ समेत कीमती अशिया मिली थी। ईडी ने अर्पिता को 23 जुलाई को गिरफ्तार किया था। ख्याल रहे कि इससे पहले भी ईडी ने अर्पिता के एक और घर पर छापा मारा, जिसमें तहक़ीक़ाती एजेंसी ने तकरीबन 21 करोड़ रुपये नकद और तमाम जायदादों के दस्तावेज़ात बरामद किए थे। तहक़ीक़ाती एजेंसी से वाबस्ता ज़राए के मुताबिक अर्पिता मुखर्जी के दोनों फ्लैट से अब तक तकरीबन 50 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई है। पार्थिव चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी फ़िलहाल 3 अगस्त तक ईडी की हिरासत में हैं। गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों के एहलकारों को पार्थिव को अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा था। उनसे असातिज़ा भर्ती घोटाले के बारे में मुसलसल पूछगछ की जा रही है। ईडी का दावा है कि अर्पिता के घर से जो रकम बरामद हुई है वो घोटाला के जरिए कमाई गई है और उसके मालिक पार्थिव चटर्जी हैं। इस हफ्ते तफसीली रिपोर्ट में बीजेपी यूथ विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा के रुकन प्रवीण नित्तारो के कत्ल के बारे में बात करने से पहले सालार डिजिटल के नाजरीन को कुछ और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताना चाहते हैं। एक 18-20 साल नौजवान मसूद की 19 जुलाई को किसी मामूली बात पर सुधीर के साथ लड़ाई हो जाती है। मसूद जो बेंगलुरु में यौमिया उजरत पर काम करता था, बकरीद के मौके पर सुलिया में अपनी दादी के घर आया था और एक स्टोर से ग्रोसरी खरीदते हुए मसूद सुधीर से टकरा गया, जो नशे में धुत था और दोनों के दरमियान हाथापाई हो गई और शनीफ के मुताबिक झगड़ा खत्म हो गया। लेकिन सुनील और अभिलाष शनीफ को फोन पर बताते हैं कि मसूद ने सुधीर पर हमला किया है और मामला हल करने के बहाने दोनों को विष्णुनगर बुलाया गया। 20 जुलाई की रात 10 बजे के करीब शनीफ और मसूद विष्णुनगर गए, जहां बजरंग दल के 8 मेंबर
नौजवान अभिलाष, सुनील, सुधीर, शिवा, सदाशिव, रंजीत, जिम रंजीत और भास्कर के एक ग्रुप ने मसूद पर वहशियाना हमला कर दिया। यहाँ तक कि अभिलाष ने मसूद के सर पर सोडा की बोतल से शदीद हमला कर दिया। शनीफ ने बीच बचाव की पूरी कोशिश की, लेकिन शनी पर भी हमला किया गया। केरला के कासरगोड के मोगरोल पुत्तूर के रहने वाले नौजवान को मंगलूर के एक अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों के ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। वहशियाना हमले के आईनी शाहिद और इस केस में शिकायत कुनिंदा शनीफ का बयान है कि अगर मुझे मालूम होता कि मसूद पर इतना बड़ा हमला किया जाएगा और वो मर जाएगा तो मैं उसे कभी वहां ना ले जाता। वो जाने पहचाने लोग थे, इसलिए मैं उसे वहां ले गया। बेलारे पुलिस ने मुलजिमीन अभिलाष, सुनील, सुधीर, शिवा, सदाशिव, रंजीत, अभिलाष, जिम रंजीत और भास्कर को 20 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया है। अब क़ियास है कि प्रवीण नितारो का कत्ल इसी कत्ल का रद्द-ए-अमल है। बीजेपी यूथ विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा के रुकन प्रवीण नितारो पर उस वक्त हमला किया गया जब वो अपनी मोटरसाइकिल पर घर वापस जा रहे थे। 3 हमलावर एक मोटरसाइकिल पर आए जिस पर केरला का रजिस्ट्रेशन नंबर था। छानबीन के लिए सीसीटीवी फुटेज को स्कैन किया जा रहा है। मुकामी बाशिंदों ने पुलिस को इत्तला दी और 32 साला प्रवीण को अस्पताल में मुर्दा करार दे दिया गया। पुलिस की 6 टीमों ने 15 लोगों को पूछगछ के लिए हिरासत में ले लिया है। 3 टीमें पड़ोसी रियासत केरल और मडकेरी हासन भेजी गई हैं। प्रवीण की बीवी ने एक यूट्यूब चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि प्रवीण और मुसलमानों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात थे। प्रवीण ने इतनी बड़ी कोई गलती नहीं की है कि उन्हें कत्ल कर दिया जाए और वो पिछले दिनों हुए उस कत्ल में भी मुलव्वस नहीं थे जिससे बजरंग दल कारकुनों का नाम जोड़ा जा रहा है। प्रवीण की बीवी का इशारा मसूद के कत्ल की तरफ था। प्रवीण नितारो के कत्ल के बाद कर्नाटक के कई हिस्सों में ज़बरदस्त मुजाहरे और एहतजाज हो रहे हैं। बीजेपी यूथ विंग के अरकान ने कहते हुए तंजीम से बड़े पैमाने पर इस्तीफा देना शुरू कर दिया है कि बीजेपी की रियासती हुकूमत पार्टी कारकुनों की जान की हिफाजत करने में नाकाम रही है। रियासती बीजेपी सदर नलिन कुमार कटील की गाड़ी को घेरे में लेकर एहतजाज करने वाले और उनसे बदतमीजी करने के मनाजिर वायरल हो गए। कुछ दाएं बाजू की तंजीमों ने इल्ज़ाम लगाया है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सोशल डेमोक्रेटिक ऑफ इंडिया नितारो के कत्ल के पीछे हैं। कशीदगी की वजह से इलाके में अवामी पाबंदी आयद कर दी गई है। चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने हमले की सख्त मजम्मत की है और जल्द तहकीकात का भी यकीन दिलाया है। वजीर दाखिला अर्गा ज्ञानेंद्र ने कहा कि ये फितरी है कि एक नौजवान को खोने पर गुस्सा होगा, लेकिन मैं लोगों से अमन बरकरार रखने की दरख्वास्त करता हूँ। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इलाके में ज़्यादातर दुकानें और बाज़ार बंद हैं। इलाके में कशीदगी के पेश नज़र कुछ स्कूलों ने छुट्टी ऐलान भी किया है। कर्नाटक के वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने कहा कि PFI पर पाबंदी लगाने का वक्त आ गया है। उनका यह बयान ऐसे वक्त में आया है कि जब हिंदू तंजीमों के कारकुनों ने रियासत में हिंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी पर बरहमी का इजहार किया था, जिनमें प्रवीण नितारो भी शामिल थे। एक मारूफ अंग्रेजी कौमी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए बोम्मई ने कहा कि PFI सियासी कारकुनों को मारने के अलावा मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस रही है और केरला और उत्तर प्रदेश समेत कई रियासतों में फैल रही है। नीज़ PFI फ़िरक़ावाराना तशद्दुद का हवा दे रही है। PFI कत्ल जैसी कई कार्रवाइयों में मुलव्वस रही है, जिसके लिए हमने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक काम वो कांग्रेस के दौर में बड़े पैमाने पर कर रहे थे, अब हमने उन पर काबू पा लिया है। ऐसी तंजीमों को रोकने के लिए एक जामे कानून साजी की ज़रूरत है। बसूरत दीगर वो मौजूदा क़वानीन की दफ़ात के तहत आज़ाद हो जाएंगी। सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने वाले एक वीडियो में बीजेपी के एक रुकन असम्बली डॉक्टर कृष्णमूर्ति अपनी ज़ाती राय बताते हुए कह रहे हैं कि जो रेप हो रहे हैं, जो कत्ल हो रहे हैं, जो झगड़े फसाद हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी ज़हनीत और शराब की वजह से हो रहे हैं। डॉक्टर कृष्णमूर्ति ने असम्बली में भी पूछा था कि अगर कभी भंग खाने वाले ने कोई कत्ल किया हो, कभी भंग खाने वाले ने किसी का रेप किया हो, डकैती की हो, मारपीट की हो, तो बता देना। कमेटियों को इस तरफ तवज्जो देनी होगी कि हम भंग और गांजे की जानिब कैसे बढ़ें। लोगों को अगर नशा चाहिए तो एक ऐसा नशा दिया जाए जिसमें कत्ल ना हो, रेप ना हो, जराइम ना हो। खबरसां एजेंसी
PTI के मुताबिक उन्होंने यह बयान रियासत छत्तीसगढ़ के एक ज़िले में नामानिगारों से बातचीत करते हुए दिया था, जिसके बाद रियासत में हुक्मरान जमात कांग्रेस के हलके में सवाल उठने लगा है कि एक अवामी नुमाइंदा किस तरह नशे को फ़रोग़ देने की बात कर सकता है। वाज़ेह रहे कि हिंदुस्तान में गांजे की फ़रोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद है, जबकि भंग की एक हद तक कानून के तहत इजाज़त है। खबरसां इदारे के मुताबिक कांग्रेस के बिलासपुर ज़िले के तर्जुमान अभय नारायण राय ने कहा है कि 3 बार MLA मुंतखब होने वाले और रियासत में वज़ीर सेहत के ओहदे पर फाइज रहने वाले मिस्टर कृष्णमूर्ति का समाज को एक नशे से छुड़ाने के लिए दूसरे नशे के ऑप्शन जैसे बचकाना ख्याल किसी भी महज़ब समाज में नाकाबिल कबूल है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जब मरकज़ी एजेंसियाँ मुंबई में 10 ग्राम गांजे की तलाश में सरगर्दा हैं तो ऐसे में BJP के सीनियर लीडर गांजे के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं। नरेश आहूजा नामी एक सारिफ ने लिखा है कि लगता है मोदी जी इस मिशन पर रात दिन काम कर रहे हैं कि दारू बंद करके भंग गांजे का मंसूबा नाफिज किया जाए। तभी तो मैं कहूँ कि गुजरात के बंदरगाहों से बड़ी मिकदार में हज़ारों करोड़ के ड्रग्स आए दिन किस तरह पहुँच रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं, मगर सब खामोश, शायद चुपके से मंसूबा नाफिज करेंगे मोदी जी। कई लोगों ने इस हवाले से मरकज़ी वज़ीर और BJP रहनुमा स्मृति ईरानी को भी तनकीद का निशाना बनाया। ख्याल रहे कि कांग्रेस के कई रहनुमाओं ने दावा किया था कि स्मृति ईरानी की 18 साला बेटी के नाम पर बार चलाया जा रहा है, जिसके जवाब में ईरानी ने उन लोगों से गैर मशरूत माफ़ी का मुतालबा किया है। केरला के 13 साल के मोहम्मद सलमान और बेंगलुरु से 13 साल के मिथिलेश ने पुलिस ऑफिसर बनकर बेंगलुरु में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के दफ्तर में अमले से सलामी ली। लेकिन सवाल है कि 13 साल की उम्र में पुलिस ऑफिसर बनना कैसे मुमकिन हुआ। तो एक दर्द भरी दास्तान सामने आई कि पुलिस ऑफिसर के लिबास में मलबूस ये 2 लड़के दरअसल कैंसर में मुब्तला हैं और मेक ए विश नामी एक NGO ने संगीन बीमारी में मुब्तला बच्चों की IPS ऑफिसर बनने की ख्वाहिश पूरी की है। इस NGO ने बेंगलुरु साउथ ईस्ट डिवीज़न पुलिस से बच्चों की ख्वाहिश के बारे में बात की, जिस पर उन्होंने भी रजामंदी जाहिर की और बच्चों का ख्वाब पूरा हो गया। बेंगलुरु के एक हाई स्कूल में पढ़ने वाले ये लड़के पुलिस की वर्दी में दफ्तर में गए और कुछ देर वहां बैठे रहे। वाकी टाकी के जरिए मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन पर तैनात दीगर अमले से बातचीत। उसके बाद उन्होंने अपने फ़राइज़ के हिस्से के तौर पर पुलिस स्टेशन का दौरा भी किया। चंद साल कबल तेलंगाना के करीमनगर शहर से ताल्लुक़ रखने वाला नन्ना मोहम्मद सादिक भी कैंसर में मुब्तला था और इसकी ख्वाहिश थी कि वो IPS ऑफिसर बने। मेक ए विश फाउंडेशन ने सादिक को एक दिन के लिए हैदराबाद पुलिस कमिश्नर बनाया था। इसके चंद माह बाद सादिक का इंतकाल हो गया। मज़ीद खबरों के लिए सालार पढ़ें, सालार देखें, सालार सुनें और सालार सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए अपनी मेज़बान अशरफ मोहम्मदी को इजाज़त दें।